Ladies and gentlemen, good day and welcome to Praveg Limited Q1 FY25 Results Conference Call hosted by Kirin Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Preeti Bharadwaj from Kirin Advisors. Over to you, ma'am. Good afternoon. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, I welcome you all to the conference call of Praveg Limited. From the management team, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, and Mrs. Bijal Parekh, Finance Director. Now I hand over the call to Mrs. Bijal Parekh, Finance Director. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, everyone, and thank you for joining us today. I am Bijal Parekh, Director of Praveg Limited, and I am pleased to walk you through our performance for the first quarter of financial year 25. To begin with, Praveg Limited has positioned itself as a leader in eco-responsible luxury hospitality in India. Our vision is to provide guests with unique, high-end experiences that also prioritize the preservation of environment we operate in. Our resorts are strategically located in areas of cultural and nature significance, ensuring that we offer something truly special, a combination of luxury and sustainability that few others can match. Our approach to hospitality is both innovative and mindful. By utilizing luxury tents in ecologically sensitive areas, we are able to create unique accommodations that blend seamlessly with their surroundings. This approach not only enhances the guest experience but also supports our commitment to environmental stewardship. The results speak for themselves: consistently high occupancy rates, strong pre-sales, and excellent returns on investment. In addition to our success in the hospitality sector, Praveg has a well-established presence in the event industries also. Recently, we have expanded into weddings and banquet segments, further diversifying our offerings and strengthening our position in the market. Now, let's take a moment to discuss the industry landscape. The tourism and hospitality sector in India is on a strong growth trajectory, supported by favorable government policies and a growing demand for unique and sustainable travel experiences. The government's research allocation of Rs 2,479 crore towards the development and maintenance of tourist infrastructure is a clear indication of the sector's importance and potential. This 46.54% increase from the previous year highlights the opportunities that lies ahead, particularly for the companies like Praveg, which are at the forefront of eco-conscious luxury hospitality. Moving on to our performance for this quarter, Q1 financial year 25 has been a period of significant expansion and strategic progress for Praveg Limited. We have successfully grown our hospitality portfolio from 4 units in Q1 financial year 24 to 13 properties as on Q1 financial year 25. This includes the launch of our recently launch of new resort at Nagwa Beach, Diu. These developments are a testament to our commitment to growth and innovation. We have also strengthened our financial position through the issuance of equity shares and convertible warrants, raising substantial capital that will support our future expansion plans. Let's dive into the financials of Q1. In Q1 financial year 25, Praveg Limited has reported a consolidated total income of rupees 24.68 crores, reflecting a remarkable year-on-year growth of 98.34%. Our EBITDA for the quarter stood at rupees 7.62 crores with an EBITDA margin of 30.88%. Despite the increased finance cost, primarily due to compliance with the Ind AS 116 on leases, we achieved a PAT of rupees 0.76 crores, representing a PAT margin of 3.09%. The growth in our hospitality segment, which contributed
rupees 21.42 crore to our revenue has been the primary driver of this financial success. However, it's important to note that our expansion has also led to higher depreciation, manpower, and operating costs, which have impacted our bottom line. Looking ahead, we are confident in Praveg Limited's ability to continue delivering strong results. With 13 operated properties currently operational and 14 more in development, our focus remains on expanding our portfolio and enhancing the quality of our offerings. The increased support from the government for the tourism sector, combined with our strategic investment and innovative approach, provides a solid foundation for sustained growth. We believe that our commitment to eco-responsible luxury and our dedication to delivering exceptional guest experiences will continue to drive our success in the coming quarters. In conclusion, I would like to thank you all of your continued support and trust in Praveg Limited. We are proud of the progress we have made this quarter and are excited about the opportunities that lies ahead. We look forward to your questions and are here to provide any further details you may require. With this, I will now open the floor for questions. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use a handset while asking a question. We will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Gautam Gosar from Monarch AIF. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity. My first question is on the Lakshadweep project. So, sir, basically, I wanted to understand how are we progressing towards the Lakshadweep project, and if you could help us understand when are you expecting it to get operational? Like, if you can split also for Thinkara and Bangaram, that would be helpful. Thank you for your question. Good evening, everybody, all investor and representative of all investor. आपने जो क्वेश्चन किया regarding Lakshadweep project, Lakshadweep we have a 4+1 project. In Lakshadweep there is three islands. One is a Thinakara, one is a Bangaram, and third is a Bijalben. The name is I think Agati. Out of that, Bangaram we have started development of that tent city. 50 tents we are developing there. Same way, 2 tent cities in Thinakara, each 100 rooms, total 200 rooms in Thinakara. So all these 3 tent city and resort is under development right now. Due to weather issue in June, July, we not able to reach to that particularly for development side. तो उसकी वजह से अभी उसका full development start हुआ है. We expecting November month we will inaugurate 1 or 2 resort and one maybe plus minus 1 month. So before December we have already planned to make it possible to inaugurate it. So December 3rd quarter that 3 resorts will be started. Okay, understood, sir. That's helpful. And sir, any update on the Varanasi project? Varanasi project is same condition regarding NGT we earlier also told. So still NGT decision is not clear. So we have status quo position है वहाँ भी. फिलहाल हमारा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कि जहां वाराणसी में ऑल्टरनेटिव प्लेसेस अवेलेबल हो तो होपफुली द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन एंड वी विल अनाउंस इट वंस कंफर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड गिवन टू अस. Okay, understood. And so third question on the rentals. So rentals, what percentage it would be of our absolute revenue, or
if you could also help with the absolute amount, how much rentals do we pay for our leased properties? So it's vary upon property to property. It's also depend upon competitive bidding. और जो रेंट की पोजीशन है वो हमारी परसेंटेज रेवेन्यू शेयरिंग पे एक भी साइट नहीं है, एक भी रिसोर्ट हमारा रेवेन्यू शेयरिंग पे नहीं है, एक्सेप्ट जवाई के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग है. उसके अलावा एब्सोल्यूट रेंट नीड टू टेक फ्रॉम आवर साइड. तो परसेंटेज पे टर्म्स पे हमारा कोई भी रिसोर्स का सेल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है. Okay, but any absolute number what you are paying as rentals right now? अभी हमारा rentals कितना होगा? Bijal, kindly provide this detail. Yeah, it varies project to project and site to site. So it ranges from a yearly 60 lakh per annum to around 9 crore, I think. Yeah, 9 crore. For Thinakara, Bangaram. Yeah. Thinakara, yes. Okay. And so, lastly on CapEx, so what is the CapEx they are going to do for FY25 and FY26? You could help with that. Bijal, Yeah. See, for the CapEx, the major ongoing sites are in the Lakshadweep site. 3 sites are undergoing at the Lakshadweep site, and another 2-3 sites are also under construction. So CapEx will be around 150 crore for the Lakshadweep, and for the other sites it will be ranging from 20 to 25 crore. Okay, so cumulatively 175 crores in 2 years. Yeah, 175 to 200 crore. And it will vary depending upon site to site. There will be some variation to that. Also it's depend upon new opportunity any available to us. So that's also may add the cost in reality at the end of March 25. तो उसके पहले जो भी नए कोई अगर ऐसे कोई एवेन्यू और प्रपोजल मिलती है तो उसमें भी कैपेक्स बढ़ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड है. Okay. Thank you so much. That was helpful. All the best. Thank you. The next question is from the line of Akshat Agarwal, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, am I audible? Yes, sir, you are audible. सर मुझे पूछना था कि अपन लक्षद्वीप में इतना हेवी एक्सपेंशन कर रहे हैं, 350 रूम्स बना रहे हैं, तो कोई रीजन है कि अपन इतना एग्रेसिव जा रहे हैं लक्षद्वीप के अंदर? क्योंकि कैपेक्स भी बहुत ज्यादा है, तो आपको उतनी डिमांड दिख रही है लक्षद्वीप के अंदर, क्योंकि शायद इतना डेवलप नहीं है वो अभी. यस, मैं आपको थोड़ा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझाऊंगा. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेवीली इन्वेस्टिंग इन लक्षद्वीप in 2 segments. One is a defense segment, which is not right now to discuss. Secondly is an infrastructure development of the Lakshadweep. Lakshadweep has one airport right now in Agatti. Just I forget before telling you this one. Third one is the Agatti resorts, which we are already under process to start the development. So Agatti में already एक airport है जिसके अंदर 150 सीट्स की जो एयरलाइन होती है अदर देन बोइंग, वो फ्लाइट्स लैंड हो सकती है. तो उसका ऑलरेडी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ अभी का है, जो कंटिन्यूअस है. अप्रैल महीने से फ्लाइट भी फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाई है. नंबर 2, वन मोर टेंडर इज केम फॉर न्यू एयरपोर्ट डेवलपमेंट इन वन मोर आइलैंड at the cost of 7,000 crore. So all international flights will be landed to the Lakshadweep. So as to tourism उसका डेवलप कर सके, तो वहाँ जो फोकस है मालदीव्स की लाइन पे गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है टूरिज्म को. और आप जानते हैं कि इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका मेजर चंक जो आउट ऑफ इंडिया जाता है, उसको उसकी जगह उसको फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और वो लोग मैक्सिमम लक्षद्वीप का बेनिफिट ले. सेम वे लक्षद्वीप की लोकल पॉपुलेशन को भी उसका बेनिफिट मिले
गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का टैक्स कलेक्शन में फायदा हो, तो उसका एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उसके लिए ये लक्षद्वीप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, द 3 आइलैंड इज अ वेरी फ्लैगशिप आइलैंड। अगत इज पॉपुलेशन हैविंग 10,000 पीपल, आई थिंक सो। द सेम वे बंगारम इज अ हिस्टोरिकल रिसोर्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है 1960 में शायद, तो आज 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। इवन आपको अगर लक्षद्वीप आज जाना है तो आपको 3 महीने 5 महीने पहले से बुक करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है, बिकॉज देयर इज नो एनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल देयर। सो प्रवेक गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस ऑल बंगारम द ब्लू लाइट रिसोर्ट। मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा स्टडी किया हो तो बंगारम के अंदर जो समंदर का पानी जब कोस्टल लाइन पे टच होता है रात को, तो ब्लू लाइट होता है पूरा, जो वंडर्स है, वन ऑफ द इंडिया की ओनली प्रॉपर्टी है कि जहाँ बीच है कि जहाँ ये आप देख सकते हैं। दूसरा, जो बंगारम है उसका एक जो आइलैंड की जो ऑलरेडी जो डेवलप प्रॉपर्टी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे को उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, उसकी वजह से हम थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं। तो और दूसरा, बंगारम इन थिनाकारा एंड अगति, द 3 आइलैंड इज ओनली गिवन टू प्रवेक अप टू 7 years, तो 7 साल प्लस उसका जो भी एक्सटेंशन पीरियड हो, तो उसके हिसाब से प्रवेक को मैक्सिमम रेवेन्यू विदाउट एनी कंपटीटर और कंपटीशन मिलने वाला है। नॉट ओनली ARR बट फ्रॉम वेडिंग ऑल्सो। बीच वेडिंग इज फेमस इन इंडिया राइट नाउ। लोग बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री में वेडिंग करने जाते हैं, तो काफी बेनिफिट मेरे को प्रवेक में उसका बेनिफिट मिलेगा। सेम वे वाटर स्पॉट्स, प्रवेक इज प्लानिंग टू स्टार्ट द वाटर स्पॉट देयर ऑल्सो। तो जो 350 जो रूम बनने वाले हैं, उसका जो गेस्ट है उसका भी एक वन ऑफ द बड़ा रेवेन्यू वाटर स्पॉट एंड वाटर एडवेंचर से मिलने वाला है। तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के विजन को सपोर्ट करते हुए हमारे को उसका मेजर बेनिफिट मिलने वाला है। वहां भी कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं है, ओनली वी आर पेइंग रेंट टू गेट रिसोर्स। Yes, so this is very helpful. तो सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि अपन ने केन्या और तंजानिया में भी सब्सिडरीज खोली थी, तो अपना कोई प्लान है वहाँ पे अभी चालू करने का कभी ना कभी? कौन सी जगह? सर, केन्या और तंजानिया में भी अपनी सब्सिडरीज है ना? Some development is going on. Once we get specific leave or cover from government or the forest people from that authority, we will announce in due course. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने देखा था कि हमारे दमन एंड दीव में ऑलरेडी 5 अच्छे रिसोर्ट्स है एंड अपन 3 और डेवलप कर रहे हैं, तो दमन एंड दीव में भी उतनी डिमांड है टूरिज्म की? दमन के अंदर हमारे 2 रिसोर्ट्स है पर्टिकुलरली राइट नाउ। एक है लाइट हाउस, जहां आप जानते हैं 35 रूम्स है, 36-38 रूम है, बिगर देन एग्जैक्टली फिगर बताएगी आपको। और सेम वे उसके बाजू में जमपुर करके है, वहां भी 35 से 38 रूम के अंदर है। वहां हमारी ऑक्यूपेंसी लास्ट ईयर, ये पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा, हम 70% से भी आगे क्रॉस कर दिया है। हमें को लगता है कि वी विल एबल टू कैच enough occupancy by developing Kachigam resorts in the Daman, which is in the lake and which is some different property than right now we have. वो है वेडिंग के हिसाब से बनाई गई प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं सूरत, तापी, वलसाड़ के लोग वेडिंग के लिए दमन आते हैं। हमारे पास वेडिंग हो ऐसी कोई प्रॉपर्टी वहाँ नहीं है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी हम डेवलप करने जा रहे हैं वो वेडिंग के हिसाब से प्लस टूरिज्म वहाँ का जो है, दमन का ऑलरेडी डेवलप टूरिज्म है, तो उसको कैटर करने के लिए। क्योंकि हमारे अक्टूबर से मार्च तक कई बार ऐसा होता है, मैनी डेज इवन मैनी मंथ हमारे पास रूम नहीं अवेलेबल होती है। तो हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव है तो हमें को लगता है वी विल अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय डेवलपिंग दिस थर्ड वन इन कच्चीगाम। सेम वे वी हैव 3 प्रॉपर्टी इन दीव। आप जानते हैं कि मानसून पीरियड है, सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई के बाद जब बारिश चालू होती है तो तब से लेकर सितंबर में थोड़ा ऑक्यूपेंसी हीट होता है, लेकिन बाकी के समय में हम 100% तक पहुंचते हैं हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल। तो उसकी वजह से एक तीसरा बड़ा फेमस बीच था जो नागवा, जो काफी टूरिस्ट वहां आते हैं, तो उसके लिए बहुत डिमांड थी, तो हम नहीं दे पा रहे, तो नागवा का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुआ तो हमने कर दिया। सेम वे वी हैव एक्वायर्ड जालंधर प्रॉपर्टी
विच इज फ्लैगशिप प्रॉपर्टी ऑफ प्रवेग। वहाँ वेडिंग के हिसाब से हमने सोचा है कि 3 रिसोर्ट इज फॉर एक्सपीरियंशियल बीच एक्सपीरियंस, और जो जलंधर है वो भी एग्जैक्टली ऑन द बीच है, और बीच और ब्यूटीफुल जगह है। अगर किसी ने आपके इन्वेस्टर ने देखा हो तो वो जगह में एक वेडिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दीव में भी हम वेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और तीसरी बात बताऊं, दीव अथॉरिटी ने ऑलरेडी फ्लाइट स्टार्ट कर दी है। जो पहले 1-2 फ्लाइट थी, अभी काफी फ्लाइट जा रही है। आप सूरत, बॉम्बे से आप जानते हैं, अहमदाबाद, सब जगह से दीव जाना स्टार्ट हो गया है। उसकी वजह से हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो भी बढ़ा है। तो सर्टेन पीरियड को बात करते हुए, मानसून पीरियड को बात करते हुए, we get good opportunity and good business from Diu also. That's why we have taken decision to take one more good property available to us. तो हमने वो डिसीजन उसके हिसाब से लिया है। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रॉपर्टीज के रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, तो गुड लक टू द मैनेजमेंट। Yes sir, it's my duty. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Vignesh from Kim Wealth Management. Please go ahead. Hi sir, am I audible? Yes sir, you Yes. Yeah. Thanks for the opportunity, sir, and congrats on good set of numbers. First question is regarding the capex. We have indicated that it will be around 200 crores for the next 2 years. How are we planning to fund it, sir? Sir, already we have funded it. We have done a preferential allotment to our reputed investor as well as group relationship. So that's already, we have already raised. Okay, so that one. Okay, thank you. So that should be sufficient for the next couple of years capex funding. Am I correct, sir? I couldn't get you. आप नहीं समझे, मैं नहीं समझ पा So that numbers are sufficient for the next 2 years of capex. So it's already funded. That's it. Not next year. It's depend upon the opportunity available to us. The private strategy is different strategy. We don't take a fund in advance for next years. We take based upon opportunity, and we dilute equity based upon opportunity. This already I have described in previous my con call also. Okay, sir. Thank you. And next question was regarding the average daily room. Will it be different for the luxury islands, sir? Or it will be in similar range with the current resorts? It will be very different in Lakshadweep. There is two things. One is the OPEX cost of Lakshadweep is different than normal resorts available in Indian soil. लक्षद्वीप के अंदर उसकी लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर कॉस्ट भी बड़ी है, तो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट विल बी मोर देन डबल देन नॉर्मल ARR वी आर प्रेजेंटली टेकिंग. नंबर 1. नंबर 2, द प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट अ टेंट सिटी, इट्स अ रिसोर्ट. इट्स अ वेरी वंडरफुल डिजाइन रिसोर्ट ओनली इन इंडिया. आफ्टर announcement of this resort, you may find good creativity from private team in terms of aesthetic, in terms of overall layout, in terms of wedding concept. वेडिंग वाले लोगों को जो पसंद आता है उसको भी ध्यान में रखते हुए, सेम वे बिजनेस पीपल्स फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ट्रैवल लेजर, उसके हिसाब से सारी एक यूनिक डिजाइन किया है इस बार, जो हम डिस्क्लोज नहीं किया है. इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन ड्यू कोर्स विद द वाउ फैक्टर. आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय इन्वेस्टर एंड माय ऑल विजिटर्स, टूरिस्ट विल appreciate to after visit of that project or that resorts. Thanks for the info. Seems to be exciting. And just on the last question, will the Lakshadweep resorts be operated 12 months a year or it is a seasonal one, sir? No, it will be 12 months a year, 365 days. But in June, July, and some part of August also, there it's depend upon how adventurous people of India came out from home and visit Lakshadweep. It depend upon actually on that, because
कई लोग को बहुत डर लगता है दरिया से, कई लोगों को मजा आता है, तो कितने लोग को एक्साइटमेंट है, उसका नंबर ऑफ जो टूरिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड है। मेरे को लगता है कि इंडिया में भी एडवेंचरियस पीपल बहुत है और जून जुलाई के अंदर वहाँ आएंगे, उसका देखने का सीन और नजारा भी बहुत अलग है। इवन ऑल ऑफ दिस है, उसके बावजूद मैं ऐसा बोलता हूँ कि जून जुलाई अगस्त में ऑक्यूपेंसी लोअर रहेगा। Okay. Okay. Got it, sir. Thank you, sir. All the best. Thank you. The next question is from the line of Gopal from Micro Capital. Please go ahead. Yeah. Am I audible? Yeah, Gopal. Yeah. Good. So actually, all the best to the Pravej team and thank you for the opportunity. So my questions are following. One is the promoter holding. Promoter holding has come down from 62% in 23 to 46%. And when I see the details, one Mr. Paras Patel has reduced the holding from 17 to 2.7. And Sunita Patel, she has reduced the holding from 9.5 to 0. Is there any specific reason for this? No, name please, I couldn't get you. So the promoter holding. Then I understand. You have given two names. Yeah, the Paras Patel and Paras Sunita Patel. Paras Patel and Sunita Patel. Yeah. You know the composition of the promoter. One is from my side and second is from Paras Bhai side. Paras Bhai has sold all equity to me and I have taken over that equity from Paras Bhai and family. So they are reduced to 0 and my equity is increased. And the first question was promoter stake reduced from 62% to 46%. If you go into detail, you find that maximum dilution is due to investor given a preferential allotment so as to Pravej is able to and can accelerate their portfolio in the direction of from 2 property to 25-27 property. तो उसको बढ़ाने के लिए फंड भी चाहिए, तो फंड कंपनी ने लिया तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली मेरा जो स्टेक है वो रिड्यूस हुआ. Oh, okay. And then regarding this return on capital employed and the margin, there has been a drastic drop from FY23 to FY24. Any specific reason? Which margin? Drastic drop. ROCE has gone down from 34.56 to 6.2 and EBITDA has gone down from 53 to 24 as per your investor presentation itself. Yeah. So I just want to understand, is it because of some investment or is it because of something? Can you just elaborate? Gopal, very good question. Already I have also elaborate very in detail in earlier con call also. मैं आपको बताऊं कि मार्च 23 में there was only 2 property and the both property was operating by Pravej since last 5 years. और अभी जो 14 property है इसमें से 12 properties operating since last 3 months to 10 months. Oh, okay. तो आप समझ सकते हैं अगर कोई भी नया रिसोर्स ओपन होता है तो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं हो जाती है ऑक्यूपेंसी, धीरे धीरे उसको एक समय लगता है, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, डिपेंड अपॉन द टूरिस्ट सिनेरियो एज वेल एज द लोकेशन एज वेल एज माउथ पब्लिसिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. तो सारी फैक्टर को मिलाते हुए ऑक्यूपेंसी बढ़ती है. और जैसे शुरुआत में जैसे जैसे उसका कंपोजिशन फ्रॉम न्यू प्रॉपर्टी टू ओल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्जन होगा, 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, आपको 2 तरीके से ऑपरेटिंग मार्जिन बड़ा हो ऐसा लगेगा. वन इज ड्यू टू ऑक्यूपेंसी एंड सेकंड इज द सेटलमेंट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. वहाँ जो मैन पावर का जो एक्सपीरियंस हमारा रहता है उसके हिसाब से प्लस माइनस करते होते 1 साल का एक्सपीरियंस वहाँ रहेगा. हम वहाँ की लोकल सिचुएशन को समझ पाएंगे तो उसके हिसाब से हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी एडजस्ट करेंगे. ये सब मिला के आपको ये जो कंपोजिशन जैसे पुराने रिसोर्स हमारे बनते जाएंगे 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, उसके हिसाब से हमारा ऑक्यूपेंसी बढ़ने से ऑपरेटिंग मार्जिन आपको मिलेगा. तो ये डिपेंड करता है, इन शॉर्ट ये डिपेंड करता है
कि कितनी प्रॉपर्टी नई है। अगर मैं अभी मेरे पास 14 प्रॉपर्टी, अभी नई 8 प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, 6-7 प्रॉपर्टी दिसंबर तक, और दिसंबर तक 6 प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल होती है 22-23 मार्च तक। तो 24 के बाद मतलब मार्च 25 के बाद अगर नई 50 प्रॉपर्टी मैं डेवलप करूंगा तो उसकी इफेक्ट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आएगी ओवरऑल। तो ये इफेक्ट ये मैटर करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। Okay. Okay. Understood, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Gautam Gosar from Monarch AIF. Please go ahead. हाय सर, थैंक यू फॉर द फॉलो अप। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप ऑक्यूपेंसी के बारे में बात कर रहे थे अभी, तो सर हमारी जो केवड़िया में प्रॉपर्टी है वो तो काफी पुरानी हो गई है, तो उसकी ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज साल की कितनी चल रही होगी अभी? साल की 50%, 45 से 50 के बीच में हमारी केवड़िया की प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी रेशियो रहता है। मैं आपको दूसरी बात केवड़िया की बताऊंगा। हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो भी इसमें बैरिंग टू दमन और दीव की प्रॉपर्टी को छोड़ते हुए जो प्रॉपर्टी है, अहमदाबाद की होटल्स है या ये जो केवड़िया है, उसकी जो रेवेन्यू है ओनली रूम से नहीं आती है। वहाँ हमारा तो 15 से 20 करोड़ का रेवेन्यू बैंक्वेटिंग और कॉन्फ्रेंस से आता है। तो ये सारी मैटर, ये दोनों मिला के आपको डिसाइड करना है। या सर करेक्ट है, बट मैं वही केवड़िया का थोड़ा स्पेसिफिक नंबर बता देता हूँ क्योंकि 25 से 50% बड़ी रेंज है। 45 to 50%। या ओके। और सर और एक क्वेश्चन है सर, अयोध्या में हमें रिसेंटली प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी सर, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं अभी कि अयोध्या में डिमांड काफी कम हो गई है, लोग कम जा रहे हैं कंपैरेटिवली जितना स्टार्टिंग में जा रहे थे। तो कुछ व्यू आप देना चाहोगे कि वहाँ आपकी प्रॉपर्टी कैसे प्रोग्रेस कर रही है? मैं आपको बताऊं, वहाँ हमारी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। मार्च तक मैं आपको थोड़ा अयोध्या का दूसरा भी एक कोई भी रिलीजियस साइट का इम्पोर्टेंस थोड़ा समझाना चाहूंगा। कोई भी रिलीजियस साइट हो, वहाँ लोग नॉर्मली धूप में समर में नहीं जाते। मई, जून, जुलाई, अगस्त वैसे भी आपको कोई भी ट्रेडिशनल जो हॉस्पिटैलिटी की जो प्लेसेस है, तो वहाँ आपको वैसे भी ऑक्यूपेंसी कम मिलेगी। दूसरा, अयोध्या के अंदर हमारे टोटल रूम है 70 से 75, आई थिंक 75 है टोटल रूम्स, बिलोंगिंग टू 2 प्रॉपर्टी। वन इज वेरी नियर टू राम मंदिर, सेकंड प्रॉपर्टी इज इन सरयू। सो अयोध्या के एग्जैक्टली जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है, ये सीजन में भी ऑलमोस्ट 80 to 90% तक परफॉर्म करती रही, क्योंकि हमारे पास जब 2 प्रॉपर्टी है तो हम बुलाएंगे कि पहला जो हमारी नजदीक की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को चलाने का मतलब 100% ऑक्यूपेंसी का ट्राई करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी जो टोटल 75 रूम में से जो 35 रूम्स है, वो प्रॉपर्टी थोड़ी कम रही, क्योंकि पहले हमने ऑक्यूपेंसी वहां लिया, सेकंड में सरयू में लिया, तो वो 40 से 50% का ऑक्यूपेंसी रहा। लेकिन मैं आपको मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अक्टूबर से मार्च तक फिर से 80 से 90% तक हम पहुंच जाएंगे, 100% तक भी पहुंच सकते हैं। ओके ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सो मच। और हमारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस है। वहाँ हमने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी थी, अगर चाहे तो 400 रूम बना सकते थे, बट प्रवेश हैज इन ओन आइडिया, तो कितनी रूम चाहिए, कितनी चलेगी, उसका हमारा एक इंटरनली कॉन्फिडेंस एनालिसिस होता है सब टीम का। तो इसमें अयोध्या में गवर्नमेंट ऑल्सो ईगर टू गिव अस मोर प्रॉपर्टी, देयर वाज ऑल्सो टेंडर, गवर्नमेंट मीन्स टेंडर बाय टेंडर। तो इवन हमने टेंडर में कई जगह पे पार्टिसिपेट नहीं किया, हमें को जो चाहिए थी प्रॉपर्टी हमने ले ली। लोग बहुत आप इन्वेस्टर लोग ने अयोध्या के नाम पे प्रोजेक्ट को फेमस कर दिया, फिर भी हमने रिस्ट्रेंट रखा था कि 75 उनसे ज्यादा प्रॉपर्टी वहां डेवलप नहीं करनी है, एंड वी हैव डेवलप ओनली 75 रूम्स, एंड दैट्स व्हाई अवर ऑक्यूपेंसी अगर 2 रिसोर्ट्स को मिला के निकालेंगे तो भी आपको 60-70% मिलेंगे, इवन समर में 60% ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 2 रिसोर्ट की एवरेज में बोल रहा हूँ। तो हम अचीव कर पाए हो। अगर ज्यादा रूम होती तो हम नहीं कर पाते। तो हमारा बेस्ड अपॉन अवर ओन एनालिसिस एंड ओन इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से डिसीजन होते हैं, तो उसका फायदा
हमारे को मिला, नहीं तो 75 की जगह अगर 200-300 रूम बन जाते, क्योंकि इन्वेस्टर लोगों का भी माहौल ऐसा था, मूड ऐसा था कि भाई अयोध्या तो बहुत चलेगी, ये चलेगी, बट हमारी इंटरनल असेसमेंट है, उसके हिसाब से चलते हैं। हो सकता है हम भी कोई जगह पे असेसमेंट में गलत हो, बट ये पर्टिकुलर अयोध्या के केस में 75 रूम करने के बाद हमें को लगा कि और नहीं करनी चाहिए, और हमने नहीं की। हमारी 2 प्रॉपर्टी बहुत एक्सपीरियंशियल लोकेशन पे, एक सरयू के घाट पे है और दूसरा मंदिर पे एग्जैक्ट एडजॉइनिंग है, जो ओनली प्रॉपर्टी प्रवेश की है। दूसरे के पास ये एरिया में होटल्स नहीं बन सकती है हेरिटेज एरिया के हिसाब से, तो वो एक एडिशनल फायदा है, तो उसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. The next question is from the line of Nikhil from Kizuna Capital Advisors Private Limited. Please go ahead. Sir, thank you for giving me the opportunity. Sir, मेरा क्वेश्चन है आपके एडवर्टाइजिंग बिजनेस पे, जो लास्ट टाइम हमने जो 2 कंपनीज एक्वायर करी थी सर, उस पे हम अभी कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं वो बिजनेस को, और सर डिजिटल मार्केटिंग का हम कुछ सेटअप करने वाले थे अभिक के अंडर में, तो सर हाउ इज दैट प्रोसीडिंग फर्दर? Yes, good question, Nikhil. Thank you for your question. The Praveg is providing service in 3 areas. One is advertising, event management, exhibition, and hospitality, experiential hospitality. Advertising में जो हमने 2 कंपनियां जो एक्वायर की है, with effect from 1st July 2024. Now onward next quarter से उसका आपको रिव्यू भी मिलेगा after this acquisition, because we have taken control on 1st July, 51% stake of the company. तो उसका जो पर्टिकुलर टर्नओवर था प्रीवियस, आई थिंक 35 करोड़ था और 5-6 करोड़ का उसका प्रॉफिट मार्जिन था। तो उसको कैसे आगे ले जाए, उसके लिए अभी हमारा पूरा टीम का पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग सेगमेंट संभालते हुए लोगों के साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहता है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या डेवलपमेंट है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके जो अभिक है और जो विधान कंपनी है, उसकी एक जबरदस्त एक आईपी है। मैं आईपी बोल रहा हूँ, उसका मतलब है टेंडर एलिजिबिलिटी। अभिक और विधान कंपनियां गवर्नमेंट के अंदर सर्विस देती है, नंबर 1। नंबर 2, अपने खुद के होर्डिंग है। नंबर 3, जो स्पेशलिटी है अभी की, जो हमने टेक ओवर करने के वक्त कंसीडर किया है, वो है टॉयलेट, स्मार्ट टॉयलेट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ओनली इन इंडिया है जिसके पास एक्सपीरियंस। टाटा कंपनी उसके एक स्मार्ट टॉयलेट इन्वेंट किए हैं। वो टॉयलेट जिसका जो लैंडस्केप है, जिसका जो लोकेशन है, वो पर्टिकुलरली हाईली मेट्रो सिटी है, जहां लोगों को टॉयलेट और उसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो अच्छे रोड्स पे, फॉर एग्जांपल अगर अहमदाबाद है तो सिंधु भवन रोड है, एसजी रोड है, अंदर बड़े बड़े जो रोड है जहां बहुत ट्रैफिक है, ऐसी जगह पे वो लोग स्मार्ट टॉयलेट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट टेंडर लेके आती है। तो वो जो टेंडर लेके आती है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाटा कंपनी का स्पेशलिटी है। वो कंपनी हमारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो स्मार्ट, और गवर्नमेंट वहां हमें को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। उसकी बैक साइड पे, जिसकी मतलब है रोड की फ्रंट साइड, पूरा बहुत बड़ा होर्डिंग होता है। तो उसके जो राइट है वो अभिक के पास है। और आप जानते हैं कि अच्छे रोड पे प्रॉपर्टी होती है तो डिपेंड अपॉन द सीजन एंड लोकेशन, आप मान सकते हैं 75,000 से लेके 1.5 लाख तक अहमदाबाद में, बॉम्बे जैसे और दिल्ली जैसी सिटी में 3-4 लाख तक आप रेवेन्यू पर मंथ वहां से ले सकते हैं। और उसका ओपेक्स जो ऑपरेशन होता है वो थर्ड पार्टी को हैंड ओवर किया जाता है। उसकी स्पेशलिटी अभी के पास है। तो फ्यूचर में दूसरी इंडिया में भी दूसरी सिटी ऐसा लेके आ रही है सिस्टम, तो उसके लिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी को बहुत बड़ा शेयर वहां मार्केट का वहां से मिलने वाला है। तो वो सेगमेंट को हम डेवलप कर रहे हैं।
प्राइवेट होर्डिंग को हम डेवलप कर रहे हैं। तीसरा डिजिटल मार्केट डेवलप करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग डिवीजन डेवलप करने के लिए हमारा इंटरनल मतलब इंटरनल डिस्कशन चल रहा है, तो उसको कैसे डेवलप करे उसको भी हम आगे ले जा रहे हैं। तो ये 3 सेगमेंट है। अदर देन गवर्नमेंट सेगमेंट में मेट्रो सिटी में टेंडर आता है, आप होर्डिंग इसमें सब्सक्राइब करते हो, रॉयल्टी भरो और वहाँ होर्डिंग लगाओ, वो तो ट्रेडिशनल सिस्टम है। दूसरी कोई रेलवे सिस्टम है, तीसरी स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो स्टैंड होते हैं वहाँ भी है। तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, अभिक एंड वृद्धान कंपनी जो उसको एक विजन को आगे ले जाके आपको नजदीक में राजस्थान में, दिल्ली में, हो सकता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उसको आगे ले जाने का के लिए बहुत टीम एफर्ट्स कर रही है। उसके लिए इंटरनल टारगेट दे दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको भी हमारे कुछ 6 महीना से लेकर 12 महीना देना चाहिए, एक विजन को आगे लेके एक अच्छा वैल्यू एडिशन प्रवेक के टर्नओवर में एंड प्रवेक के प्रॉफिटेबिलिटी में, और प्रवेक की मार्केट उसकी भी एक कंपनी की जैसे प्रॉफिट बढ़ता है तो उसकी जो ये जो मार्केट कैप का बेनिफिट कंपनी के इन्वेस्टमेंट को भी मिलेगा, वो आपको समय आते हुए देखने मिलेगा। Yes, sir. Thank you, sir. And all the best. Thank you. The next question is from the line of Vedic from Monarch Network Capital Limited. Please go ahead. Congratulations, sir, on good set of numbers. Sir, मेरे 2-3 questions है. Firstly, I want to understand that currently we have 13 resorts operational, and our plan is to expand more 14 resorts. So I want to know the operational dates for most of them. Firstly, in Lakshadweep, हेलो सर, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर, तो मुझे ये जानना था कि हमारे ये जो लक्षद्वीप में टोटल पिनकरा में 100, 200, बंगारम में 150 और अगती में 50, तो ये 400 रूम जो अपने प्रपोज है वो ऑन ट्रैक है ना सर? वो 400 के 400 आ जाएंगे ना? 1 to 1 आपको डिस्क्राइब करूंगा। Chinakara 100 room under development right now, team is there, work is in progress. Chinakara 2, work is in progress. Bangaram 1, that is a 50 room, work in progress. Bangaram 2nd, which is 100 room, still possession is awaited. Unless and until possession नहीं आता है, तब तक वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन मेरे इन्वेस्टर को बताना चाहूंगा, टीम को अभी ऑन कॉल पे, कि जो जहाँ पोजीशन नहीं मिला है वहाँ हमारा कैपेक्स 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। तो डोंट वरी, हमारा एक भी पैसा वहाँ वेस्ट नहीं जाएगा। वी एक्वायर्ड इट, वंस वी गेट पोजीशन वी स्टार्ट टू डेवलप इट, वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम 180 डेज से कम करने का हमारा प्रयास ऑलवेज रहता है। तो ये जो लक्षद्वीप के जो 3 महीने जो बोले वो आपको 3rd क्वार्टर में ऑपरेशनल दिखेंगे। और सर अगति में? अगति इज ऑल्सो वेटेड फॉर पोजीशन। तो सर currently only 250 rooms are as of now on track. Rest 150 is still on hold. Yes, 250 and then 150 is under possession status. तो सर आपने ये बताया था कि हमारा टोटल केपेक्स अराउंड 150 करोड़ लक्षद्वीप आइलैंड के लिए है, तो ये सिर्फ हमारे 250 रूम्स के लिए 150 करोड़ का केपेक्स है ना? हमने 350 के लिए एलोकेट किया है 150। ओके, सो 150 करोड़ इज एलोकेटेड ओनली फॉर 250 रूम्स। 350। अच्छा, और सर हमारा ये जो राजस्थान में उदयपुर, रणथंभौर और जवाई में जो प्रॉपर्टीज आ रहे हैं सर, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, तो जवाई विल बी, मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी ऑफ इनॉग्रेशन भी बताना चाहूंगा ऑपरेशन की। हाँ, हमारी ऑलवेज स्ट्रेटेजी रहती है कि जो भी रिसोर्स हो वो आइदर मई के पहले स्टार्ट हो या सितंबर और सितंबर के बाद हो। ओके, आप इन्वेस्टर लोगों को लगेगा 3 महीने से कुछ प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं आया, 2-3 महीनों से, वही रीजन है। मानसून में चालू करके कोई फायदा नहीं, तो जहां भी लगेगा मानसून का फायदा है वहां हम इनिग्रेट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। तो अभी जो स्टेटस है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको ऑलरेडी लक्षद्वीप का मैंने स्टेटस क्लियर किया। जवाई विल बी स्टार्टेड मे बी इन सितंबर एंड और 3rd क्वार्टर के बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। अडालज will be started in 3rd quarter of August of this month,
October, first some days in October. Jalandhar, Silvassa, Kachigam will be start before October. Before October, except Kachigam will take 1 month plus minus. So total, we have planned to inaugurate maximum in October, before October or October, and 3 is on November. So my team is constantly working 24 hours to deliver Lakshadweep resorts before November. तो उसके लिए काफी एफर्ट चल रही है. आप जानते हैं कि अभी मानसून चल रहा है, फिर भी हमारी अगस्त में भी टीम वहां है और काफी ऐसी सिचुएशन में भी काम कर रही है. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना मेरे को चाहिएगा डेवलप के लिए. आप इन्वेस्टर और हमारे को भी लगता है ऐसा, किसी को भी ऐसा बिजनेसमैन चाहेगा कि नवंबर की जगह अगर अक्टूबर हो जाए बहुत बढ़िया है. तो उसके लिए हम भी हमारा टीम पर प्रेशर बनाए हुए हैं. और सर अपना उदयपुर और रणथंभौर का क्या स्टेटस रहेगा? हाँ, रणथंभौर के अंदर हमने पोजीशन, हमारी लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड किया है, उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किया है. उदयपुर के अंदर हमने ऑलरेडी सारे क्लियरेंस ले लिए हैं, बट द कंपनी इज थिंकिंग फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. उदयपुर के अंदर हमारे जो रूम थे वो 30 रूम थे, 25 to 30 रूम थे. हम उदयपुर में चाहते हैं, हमारा जो इंटरनल असेसमेंट ऐसा कह रहा है कि अगर उदयपुर में 100 से लेकर 150 रूम होगा तो वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग का जो प्रवेश का अभी आईपी हम डेवलप कर रहे हैं एरिया वाइज, कि जैसे लक्षद्वीप में वेडिंग है, केवड़िया में वेडिंग है, कच्चीगाम में वेडिंग है, अहमदाबाद के अंदर वेडिंग प्रॉपर्टी है, अडालज के अंदर वेडिंग प्रॉपर्टी है. अगर उदयपुर में भी वेडिंग प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे तो वो काफी बड़ी सिनर्जी क्रिएट करेगी प्रवेश के लिए. तो वाई वी फोकस ऑन 25 रूम, वी फोकस ऑन 100 रूम. So alternative discussion is going on. That's why we keep it on hold. And we got more opportunity than this 25 room in last 6 months. आप जानते हैं, तो उसको भी हम हमारे जो स्ट्रेटेजी है उसको रिडिफाइन करते हैं कई बार. Okay, got it, sir. And sir, what's our status for the Keem and Kashid properties in Maharashtra? Keem and Kashid में possession is awaited from the government. Possession is awaited from the government. So technically अगर हम देखें तो FY25 में हमारे सिर्फ 6 या 7 ही प्रॉपर्टीज आएंगी. जैसे लक्षद्वीप में 250 रूम्स आएंगी, 2 तिनकरा आइलैंड पे, 1 बंगारम आइलैंड पे, फिर बाद में 1 जवाई में आएगा और 2 दमन एंड दीव में आएगा. तो अप्रोक्स 6 का स्टेटस पता है, लेकिन जो बाकी के 8 है उसका स्टेटस अभी तक नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. अली बाकी 2 रणथंभौर एंड उदयपुर की 4 प्रॉपर्टी का स्टेटस की जगह, वो जो टोटल रूम है वो कुल मिला के 120-30 रूम है. उसके बदले में काफी ज्यादा रूम प्रवेग ने एक्वायर कर लिए. तो आप उसको टोटल नंबर के हिसाब से आप चलिए इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से. कई बार 2 प्रॉपर्टी डिले चल रही है पोजीशन में, नॉट डेवलपमेंट तो हमने एक बार पोजीशन लिया तो हम चाहते हैं कि 180 डेज के अंदर वो कंप्लीट इनॉग्रेशन, वो आप जानते भी हैं, जो स्टार्ट किया है उसको हम पूरा कर लेते हैं. तो पर्टिकुलरली वो 4 प्रॉपर्टियों के बदले में काफी कुछ वैल्यू नई प्रॉपर्टी है, अच्छे लोकेशन पे एक्वायर कर दी गई है. और आपको नंबर ऑफ रूम जो पहले के विजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मिलेंगे एट द एंड ऑफ इन रियलिटी. ठीक है सर. Hello. Does that answer your question, Mr. Vedic? Yes, yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Aditya Mehta from GK Capital Management Limited. Please go ahead. Yeah, hi sir. Thank you for the opportunity. So sir, इस FY25 मार्च तक हम मार्च एंड तक हम कितने रूम्स ऑपरेशनल कर लेंगे? It will be around 1500 plus. By March 2025, we will be operating 1500 plus rooms. Plus, not less than that. Okay. And sir, इस साल हम वेडिंग से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल? वेडिंग से इस बार हम 50 to 75 करोड़. 50 to 75 करोड़. एंड सिर्फ वो ग्रैंड विलोजिया से आएगा, बाकी और कहीं से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? नो, इट्स फ्रॉम ग्रैंड विलोजिया
it's from Adalaj, it's from Kevadia, it's from Kachigam, it's from Lakshadweep. ओके और मैं आपको बताऊं, लक्षद्वीप का जो साइज ऑफ रेवेन्यू है बहुत कुछ प्राइवेट के इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से गेम चेंजिंग है। जो रेवेन्यू ग्रांड इलोगिया में एक वेडिंग की 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया तक मैक्सिमम मिलता है, वो हमारे केवड़िया में 75 से 1 करोड़ तक मिल सकते हैं। अदालत के अंदर 50 लाख पर वेडिंग मतलब है अगर वो सारी सर्विस लेता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रूम सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा जहाँ बारात हो, जहाँ रिसेप्शन हो, जहाँ वेडिंग हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। आप समझते हो अभी इंडिया में कैसे वेडिंग चलते हैं। तो अगर सब ऐसा, तो ये जो सेगमेंट वाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ, ग्रांड इलोगिया में से आपको 25 to 30-40 लाख तक बजट होता है। अदालत के अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी अहमदाबाद में, वहां से हम 50 लाख से 1 करोड़ तक मेरे को रेवेन्यू मिल सकता है। सेम वे जो कच्ची गांव है वहां 25 से लेके 50 लाख तक का रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन लक्षद्वीप की मैं बात करूं तो इट्स मिनिमम 1 करोड़ एंड इट मे रीच टू 10 करोड़ फ्रॉम वन वेडिंग। ओके, सो ये चेंजेस है। सो सर, ये लक्षद्वीप में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम्स पिकअप होने में हमें कितना टाइम, व्हाट इंटरनल असेसमेंट क्या है, कब तक हमारी जो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी है 50 को क्रॉस कर पाएगी? मतलब जब तक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आई होप ऑक्यूपेंसी राइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट की बंगारम और थिनाकारा की प्रॉपर्टी को लेना देना इसीलिए नहीं है कि जो अभी का जो आइलैंड है हमारा, जहाँ फ्लाइट लैंड होता है, वहां से बंगारम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, वहां से थिनाकारा 1 किलोमीटर दूर है। ऑलरेडी इट्स कनेक्टेड वेल टू फ्लाइट्स और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अराउंड 6 to 8 फ्लाइट स्टार्ट कर दी है और गवर्नमेंट ने प्लान और एश्योरेंस प्लान बनाया है वहां का कि जैसे हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है तो उसके पहले आपको लॉजिस्टिक इश्यू वहां के नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट। तो कुल मिलाकर 9 फ्लाइट चालू करने का प्लान है गवर्नमेंट का। तो उसके हिसाब से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ है हमारे 250, 300, 400 रूम्स को चलाने के लिए। ओके, तो सर FY25 के लिए कोई रेवेन्यू या मार्जिन गाइडेंस? सर ऑलरेडी मैंने टीवी इंटरव्यू में भी बोला था 300 करोड़ प्लस का लिए हमारा एफर्ट्स पूरा चल रहा है। इट्स कम फ्रॉम ऑल कंसोलिडेटेड सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओके, मिनिमम 40% मार्जिन। वो आप इस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल आप तो सब आपका राइट है एक्सपेक्ट करने का, बट वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट। श्योर सर। Okay, got it, sir, and all the best to you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Krupal Soni, an individual investor. Please go ahead. Sir, first of all, congratulations on wonderful set of numbers. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रीम ऑफ अमालगमेशन अनाउंस हुआ था जो यूलोजिया इन होटल है गोता वाली उसकी, तो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर? सर इस अंदर प्रोसेस सेबी से बीएससी से फाइनल रिपोर्ट सेबी जाएगा, फिर एनसीएलटी से हमारा मर्जर अप्रूव होगा। इट्स अंडर प्रोसेस। राइट, ओके, थैंक यू सर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि सर हमने पहले जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थे जून 23 वाली, तो उसमें सर 3 प्रॉपर्टीज मेंशन थी, शिवराजपुर, सासणगीर और कुंभलगढ़। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज आई थिंक ओन लैंड पे डेवलप होने वाली थी, तो उनका प्रेजेंट स्टेटस? मैं आपको बताऊं, शुरुआत में हमने ये विजन में रखा था, लेकिन हमारे को लगा बाद में उसके बदले जो अपॉर्चुनिटी दूसरी मिलती गई वो उससे अच्छी थी, तो हमने वो 3 लोकेशन पर्टिकुलरली जब भी कुछ अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी होगा तो हम करेंगे। इट्स अंडर प्रोजेक्शन। That is answered. Thank you so much. Due to time constraints, we'll take this as a last question. I now hand the conference over
to Ms. Preeti Bharadwaj from Kirin Advisors for closing comments. Advisor.com. Once again, thank you everyone for joining the conference call. Thank you. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you so much. Thank you so much, all investors and retailers. Kirin, thank you. Thank you, sir. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.